In previous class, we have learnt about data, computer vision, and natural language processing, right? So these are the three domains of artificial intelligence, and I have told you examples also that computer vision में emoji scavenger game है, and natural language processing के लिए आप electronic virtual assistants यानी ईवा को यूज़ कर सकते हैं, और डेटा के लिए जो आप गेम यूज़ करते हैं मोस्टली वो स्टोन पेपर सीजर वाला गेम होता है, जिसमें आप ये निकालते हैं कि अगर हम कंटिन्यूसली स्टोन पेपर सीजर को खेलें तो कंप्यूटर प्रेडिक्ट कर सकता है कि आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा। इसी हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा हुआ है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ डेटा एंड how can we collect data and how is it meaningful that we are going to study in this slide. So you can see for any artificial intelligence job data is needed. If there is no data, we cannot predict, we cannot create something new. So we can understand that data is basically the heart of artificial intelligence. All right. We cannot develop anything, we cannot find anything if we don't have data. Now think for a scenario of a biometric machine wherein what happens, if you people have tried, what happens in biometric, initially your thumb impression is stored. Okay, when we install a biometric machine, for example, we are installing a biometric machine for employees in a company, right? So in that biometric machine, everyone's thumb impression is stored by his name, right? Try to relate it with an example, with this example, okay? जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको इस example से relate करेंगे आप लोग. So you can think of a company wherein a biometric system has been implemented and every employee has to give a thumb impression when he comes to the office, right? But initially when this machine was installed, हर एक को आकर के अपने थंब का इम्प्रेशन देना पड़ा होगा वहाँ पे, और उसके अगेंस्ट कंपनी ने हर एक का नाम और जो डेजिग्नेशन है या जो डिटेल्स हैं वो फीड की होगी. जो डिटेल्स और डेजिग्नेशन जो फीड किया होगा दैट हैज़ बीन फेड वंस ओनली. नाउ रेगुलरली ऑन डेली बेसिस एम्प्लॉयज़ आर कमिंग, दे आर प्रोवाइडिंग बायोमेट्रिक, दे आर प्रोवाइडिंग थंब इम्प्रेशन टू द मशीन, और मशीन आपका टाइम नोट कर लेती है. So your identity, your actual identity is converted into your virtual identity. आप थंब लगा रहे हैं और मशीन को पता चल जा रहा है कि भाई दिस एम्प्लॉय हैज़ ज्वाइन द स्कूल और ज्वाइन द कॉलेज या ज्वाइन द कंपनी, राइट? तो बेसिकली अगर हम इनिशियली डेटा फीड ना करें उसमें कि ये कौन सा थंब किसका है, तो आपकी मशीन किसी काम की नहीं रहेगी. सो वी कैन थिंक दैट विदाउट डेटा हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्रिएट नहीं कर सकते हैं. आई एम गिविंग वन मोर एग्जाम्पल्स. नाउ अ डेज every mobile phone has biometric system, so there is a thumb impression, face recognition system, so there are so many ways to open a mobile phone. Now think of a mobile phone in which you have fed your data, in which you have fed your face. If someone is trying to open it with his face or with his fingerprint, can he open it? So answer is no, he cannot open it because the data has been fed about you. अब आप चेहरे को जब आपका चेहरा रिकॉर्ड किया गया होगा उस फ़ोन में, तो काफ़ी आपके चेहरे के अगर आप थोड़े बहुत एक्सप्रेशंस भी डालते हैं तो भी वो मैच कर लेता है कि आप यही हैं, क्योंकि एग्जैक्टली आपकी वही पॉस्चर नहीं रही होगी जो आपने रिकॉर्ड करते समय किया होगा. तो उसके अलग अलग डायमेंशंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपने आप सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर लेता है, और अगर आप कई बार दाएँ बाएँ भी देख रहे होते हैं तो भी आपका फ़ोन जो है वो ऑन हो जाता है. तो ये सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होता है, राइट? सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा. एंड वो डेटा के फॉर्मेट्स क्या होते हैं तो आप लोग जानते हैं. साउंड इज़ अ डेटा. देर आर सर्टन मशीन्स विच टर्न्स ऑन टर्न्स ऑफ बाय साउंड इंस्ट्रक्शंस ओनली, लाइक एलेक्सा. आई हैव गिवन यू एग्जांपल ऑफ एलेक्सा. सो वट एवर साउंड यू आर प्रोड्यूसिंग, वट एवर यू स्पीक, it intercepts it and finally does the job. Text is data, whatever we type like username and password, so text is also data. Images, face recognition system, images भी डेटा होती हैं बच्चों, और वीडियो. तो ये 4 तरह का डेटा फॉर्मेट है. आपको ये याद रखना है कि हमारे पास डेटा कितनी तरह का होता है. वी हैव डेटा लाइक साउंड, वी हैव डेटा लाइक टेक्स्ट, वी हैव डेटा लाइक images and videos also. Alright. Now second is computer vision. This is very important
दिस इज़ बेसिकली इनपुट टू अ प्रोसेसिंग. जब भी कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई भी प्रोसेसिंग होती है, दैट इज़ बेस्ड ऑन कंप्यूटर विजन. नाउ दिस डिसिप्लिन कंप्यूटर विजन बेसिकली है क्या? कंप्यूटर विजन को हम अचीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कैमरा. कोई भी चीज़ जो पिक्चर रिकॉर्ड करती है या जो भी मूवमेंट्स को रिकॉर्ड कर सकती है, जो भी आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करती है इन अ विजुअल फॉर्मेट, उसको हम कंप्यूटर विज़न बोलते हैं. ठीक है. अब कंप्यूटर विज़न काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंप्यूटर विज़न से ही इनपुट आता है. जैसे अगर हम टेस्ला कार्स के बारे में बात करें, टेस्ला कार मैंने आप लोगों को बताई थी, जो ऑटो ड्रिवन कार्स होती हैं, तो वो क्या करती हैं, वहाँ पे कोई ड्राइवर नहीं है रोड देखने के लिए. वहाँ पर कैमराज लगे हुए हैं, सेंसर्स लगे हुए हैं, और विद द हेल्प ऑफ दोज कैमराज कार डिसीजन लेती है कि मुझे ब्रेक लगाना है, कि मुझे टर्न करना है या मुझे रोकना है. ये सारी चीज़ें कार उस कैमरा से ही करती है. तो ये जो हमारा आइडिया होता है, ये हमारा आइडिया कंप्यूटर विज़न को लेकर के होता है. अब कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं जिनके बेस पे, जिनसे हम कंप्यूटर विज़न के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं? जैसे इसमें सबसे पहले आपको दिया हुआ है डिफेक्ट डिटेक्शन. ओके. अब इसका मतलब क्या होता है बच्चों? मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूँ आपको. जैसे कई बार क्लासिफिकेशन होता है. आई डू नॉट नो वेदर यू पीपल नो दिस और नॉट. जैसे हमें क्लासीफाई करना होता है. क्लासीफाई का मतलब आप ये मान के चलें कि मान लीजिए एप्पल्स हैं हमारे पास, एप्पल्स, राइट. और हमें क्या करना है, एप्पल्स को उनकी क्वालिटी के बेस पे क्लासेस में डिफाइन करना है कि ये ए क्लास के एप्पल हैं, ये बी क्लास के एप्पल हैं, और ये सी क्लास के एप्पल हैं. ऑलराइट. तो क्या हुआ, जिस एप्पल में कोई भी डिफेक्ट नहीं है, ना कलर का डिफेक्ट है, ना साइज़ का डिफेक्ट है, और ना ही कोई दूसरी तरह का डिफेक्ट है, उसको हम क्लास ए में डालेंगे. और जिसमें थोड़ा सा कम डिफेक्ट है उसको बी में, और इसी तरह से जिसमें ज़्यादा डिफेक्ट है उसमें सी में. तो होता ही क्या है, इसको मैनुअली भी किया जा सकता है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो व्हाट हैपन्स, दीज ऑल एप्पल्स, ये सारे के सारे एप्पल एक कन्वेयर बेल्ट पे रखे जाते हैं, एक सिस्टम में रखे जाते हैं. यहाँ पर कैमरे लगे होते हैं, राइट. कैमरा मशीन्स हैंडल करते हैं जो जहाँ से इन एप्पल्स को निकलना है. तो बेस्ड ऑन दिस कंप्यूटर विजन ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि कौन से एप्पल्स ख़राब हैं, कौन से एप्पल्स अच्छे हैं, और उसके अकॉर्डिंग उनको अलग अलग बास्केट्स में डाल देते हैं, राइट. तो बेसिकली कंप्यूटर विजन कहाँ पर हेल्प कर रहा है? डिटेक्शन, डिफेक्ट डिटेक्शन में. बेटा कोई प्रॉब्लम है? यू वांट टू आस्क समथिंग? समवन्स कैमरा इज ऑन, बेटा चेक इट. समवन्स कैमरा इज ऑन, नॉट कैमरा बट साउंड इज ऑन. चलिए अभी तो बंद है, कोई बात नहीं. सो दिस कैमरा विजन इज यूज्ड टू फाइंड आउट डिफेक्ट डिटेक्शन. लेट्स सी व्हाट हैज रिटन हियर. लिखा क्या है एक बार चेक करते हैं. सो ट्रेडिशनली डिफेक्ट डिटेक्शन इज अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क. ओके, एज वी नो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, which is carried out by trained people in selected batches. Total production control usually not possible. So with computer vision ये हम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये एग्जांपल दिया अभी. ठीक है. चलिए दूसरा है गेमिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. गेमिंग के लिए भी हम लोग कंप्यूटर विज़न यूज़ करते हैं. तो गेमिंग के लिए कंप्यूटर विज़न कैसे यूज़ किया जाता है? तो आप लोग जानते हैं कि जब आप गेमिंग करते हैं तो इसमें भी आपको आपकी जो डिवाइसेस हैं उनकी फ़िज़िकल लोकेशंस ली जाती हैं, और देख करके मशीन आपको देखेगी, तब आपके जो भी डिसीजन लेने हैं वो मशीन लेगी. ये पर्टिकुलर गेम होते हैं, तो आई डू नॉट नो वेरी मच अबाउट इट, बट एन एग्जांपल इज गिवन हियर. माइक्रोसॉफ्ट किनेक्ट, okay, is an excellent example of popular commercial product which is totally oriented on AI utilities. So you people can try this game, Microsoft Kinect. I have not tried it, but for you I'll try this and I'll explain that how does it work. तीसरा मैंने जो एग्जाम्पल आपको दिया बच्चों, वो ड्राइवरलेस कार्स का दिया, जो कि मैंने अभी आप लोगों को समझाया था. ड्राइविंग मोड में वो टेक्नोलॉजी से ट्रैफिक सिग्नल्स कैसे रोकना है, ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाती हैं, राइट. सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ कंप्यूटर विजन.
नाउ द थर्ड थिंग, 3 चीज़ें हमने डिस्कस की थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, जो 3 इंपॉर्टेंट पार्ट थे, उसमें जो थर्ड चीज़ आ रही है वो हमारी आ रही है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है ये थर्ड डोमेन है, राइट। और इसमें हम जो भी रिकॉग्नाइज करते हैं, जो भी हम बोलते हैं, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से रिकॉग्नाइज किया जाता है। यहाँ पर जब हम लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बात करते हैं बच्चों, तो बोलना और लिखना दोनों तरह के सिस्टम को इसमें इंक्लूड किया जाता है। सो यू कैन सी इंटेलिजेंस सिस्टम यूज नेचुरल राइटिंग और रीडिंग स्किल्स। अब जैसे यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश लिखा है, तो ये इसके अलावा और भी लैंग्वेजेस को यूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे हम इसमें सॉफ्टवेयर्स को अपडेट करते रहेंगे, जैसे जैसे हम इसमें सिस्टम को अपडेट करते रहेंगे, उस हिसाब से हम अलग अलग लैंग्वेजेस के साथ काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है ऑलवेज रिमेंबर दैट इनपुट एंड आउटपुट डेटा ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम कैन आइदर बी स्पीच और रिटन टेक्स्ट। जो हमने यहाँ पर लिखा था वही चीज़ यहाँ पर आती है। नाउ जब हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बारे में बात करते हैं, तो इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, मेन 2 कंपोनेंट हैं, जिसमें पहला कंपोनेंट है हमारा नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन और दूसरा है नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। बेसिकली ये दोनों पार्ट जो हैं, दीज आर 2 साइड्स ऑफ अ क्वाइन। जो नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग है, उसका आइडिया क्या होता है कि जो भी हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग इनपुट इन रिटन और स्पीच फॉर्मेट, सो कंप्यूटर हैज़ टू अंडरस्टैंड इट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एलेक्सा का एग्जाम्पल लेते हैं, सो वट एवर आई एम स्पीकिंग, दिस शुड बी अंडरस्टूड बाय द डिवाइस, राइट। वो जो हम बोल रहे हैं वो उसको समझ में आना चाहिए। इसके लिए बच्चों डिफरेंट कैलिब्रेशंस किए जाते हैं। कैलिब्रेशंस का मतलब क्या हुआ, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो आपको दिए जाते हैं। उन प्रोग्राम्स में आपको क्या करना होता है, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर NLU पे काम कर रहा है, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग पे काम कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वो आपको एक पैराग्राफ या एक कोई सेंटेंस, काफ़ी सारे सेंटेंसेस पढ़ने के लिए बोलेगा, राइट। और जैसे जैसे आप उन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, वो साथ साथ ये बताता रहता है कि वो साथ साथ इंटरसेप्ट करता रहता है कि आप जैसा पढ़ रहे हैं, जैसा आपका बोलने का तरीका है, उसके हिसाब से उसको वो कैसे समझ सकता है। क्योंकि हम जानते हैं सबके बोलने का तरीका अलग अलग होता है, किसी की स्पीच अलग होती है, किसी का पिच अलग होता है, किसी की टोन अलग होती है, कोई पॉजेस ज़्यादा लेता है बोलते समय, किसी की श्रिल वॉइस होती है, किसी की पोलाइट होती है। तो सबके अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। तो कंप्यूटर क्या करता है, इन सारे फॉर्मेट्स को अंडरस्टैंड करके जो भी आप लैंग्वेजेस बोल रहे हैं उनको समझने के लिए अपने पास एक डेटा तैयार करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है, जैसे मैं आपको अभी एलेक्सा या सिरी का एग्जांपल दे रहा था। तो हम जो भी बोलते हैं ये उसको समझता है, क्योंकि अगर समझेगा तभी वो डेटा को मैच कर पाएगा। इसके बाद है दूसरा जो फेज़ है, वो है नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन का मतलब होता है मशीन तैयार करेगी आपके लिए आंसर्स को, ठीक है, और इन आंसर्स को तैयार करने के लिए एक सिस्टम डेवलप किया जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मीनिंगफुल फ्रेजेस एंड सेंटेंसेज इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल लैंग्वेज फ्रॉम सम इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। इंटरनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब आपके अपने लॉजिक से, एल्गोरिथम से, जो मशीन के अंदर चल रहा है एल्गोरिथम। जहाँ पर मैं मशीन बोल रहा हूँ बच्चों, मशीन का मतलब कोई भी डिवाइस जो AI बेस्ड है या कोई भी कंप्यूटर जो AI बेस्ड है, ठीक है। So in simple term, the component automatically generate and narrate that describe, summarize or explain input structured data in a human-like manner at the speed of 1000 pages per second. So ये एक basic idea है कि जब आप कोई processing करते हैं, that has to be fast, और आप जो भी बोला जा रहा है उसको समझें और उसको generate करें। generate करें मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ दिस इज़ अ पेन, अब कंप्यूटर वॉइस को प्रोसेस नहीं करेगा, कंप्यूटर क्या करेगा, उसको अंडरस्टैंड करेगा कि आपने दिस इज़ अ पेन बोला और उसको स्क्रिप्ट में चेंज कर देगा, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन में चेंज कर देगा, ताकि उसको प्रोसेस किया जा सके। क्योंकि हम कोशिश यही करते हैं कि जो हमारा डेटा है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में मिले कंप्यूटर को, ताकि उसको प्रोसेस करने के लिए ईजी रहे। ओके, सो यहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं, दिस इज़ ऑल अबाउट एन एक्टिविटी। एक पेन पेपर क्विज़ है बच्चों। अच्छा, एक आप लोग कहूट के बारे में पढ़ेंगे। कहूट जो है एक क्विज़ बनाने का प्रोग्राम होता है। आजकल काफ़ी प्रोफेशनल टीचिंग में कहूट को यूज़ किया जाता है, राइट। तो जैसे हम पेन पेपर क्विज़ बनाते हैं, इसी तरह से हमारे पास एक फ्री ऑनलाइन पोर्टल है कहूट, जिस पे हम ये क्विज़ेस तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कहूट पे जाते हैं
और अपनी आईडी क्रिएट करेंगे वहाँ पर हम। आप आज आप लोग ट्राई करेंगे इसको और उसमें कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपकी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ हैं। अब क्योंकि हमारे पास प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो हम ये सारी चीज़ें आपको नहीं करा सकते, लेकिन फिर भी नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा कि ये जो भी हैं एक्टिविटीज़ ये मैं आपको कराऊँ। जैसे मैं आपको गेम के बारे में बता रहा था, एक टीचेबल स्नेक है, इसके बारे में हम बता रहे हैं, बताएंगे आपको। ये फेस ऐप है रिकॉग्नाइज़ करने के लिए फेस को। उसके बाद गूगल ट्रांसलेट आपको मालूम ही होगा, आप किसी भी लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिकल बेस्ड। हमें अगर हम स्कूल में होते तो हम ऑब्वियसली करते। नेक्स्ट पेज पे अगर हम आते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रॉक स्टोन पेपर सीजर। ये एक एक्टिविटी है जो आपको कंप्यूटर डोमेन पे, डाटा डोमेन पे करनी है। आप चाहें तो ये एक साइट है बच्चों, इस साइट पे आप जाएं और आप इसको ट्राई करें। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। देखिए इसमें आपको क्या करना है, कोई भी 2 बच्चे, या तो आप लोग पेयर में भी कर सकते हैं या मशीन के साथ, यहाँ पर क्योंकि मशीन है, साइट है हमारे पास, तो हम साइट की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो स्टोन पेपर सीजर का आइडिया क्या होता है कि मान लीजिए स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 खेल रहे हैं और वो अपनी अपनी मूव्स लिखते चले जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नंबर ऑफ गेम्स प्लेड बाय यू, नंबर ऑफ गेम्स ओन बाय यू, नंबर ऑफ गेम्स ओन बाय एआई, नंबर ऑफ टाइज। सो ये हमारा एक टेबल बनता है। अब इसका आइडिया ये होता है कि जब आप इस गेम को खेलेंगे तो जब आप मूव्स देते हैं अपनी स्टोन पेपर या सीजर कोई भी मूव देते हैं तो एक लेटर स्टेज में ये होता है कि हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट जो आप प्रोसेसिंग करेंगे वो क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप इसको ट्राई कीजिए। यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है affinity.com corporate.stock रॉक पेपर सीजर, आप इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है, या स्टोन पेपर सीजर जो भी है। इसके बाद एक मिस्ट्री एनिमल करके एक एक्टिविटी है, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊँ। मिस्ट्री एनिमल में क्या होता है, एक क्विज़ होता है जिसमें आपसे 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इट्स अ क्विज़ जिसमें 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, उनके आंसर करते आप फिर एक मिस्ट्री एनिमल जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है नाउ आस्क 20 येस नो टाइप के क्वेश्चंस हैं, उनसे आप जनरेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग ट्राई कर सकते हैं घर में, एंड दीज थिंग्स आर एक्चुअली वेरी मीनिंगफुल। इमोजी स्कैवेंजर मैंने आप लोगों को बता दिया था, जैसे यहाँ पर पेन लगाओगे तो वो बता देगा कि भाई ये पेन है। इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है, उस 10 सेकंड में ही आपको ये सब करना होता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारा ये यूनिट ख़त्म हो जाता है। इस यूनिट के बारे में कोई भी क्वेश्चंस होंगे वो आप मुझसे पूछेंगे। आज क्लास के बाद मैं आप लोगों से कुछ डेटा शेयर करूँगा, या शायद मैंने कल शेयर किया है, अभी एक बार मैं चेक करूँगा, ठीक है।